Now, children, I am going to explain this lesson. This is lesson number 8, looking after our body. Now, in this lesson, we will study the different ways to keep our body healthy, various precautions we have to take to keep our body safe, and the basic idea of first aid. इसमें हम पढ़ेंगे अपनी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट वेज़ हाउ टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अपनी बॉडी को हम किस किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं और डिफरेंट प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं, सावधानियां कैसे बरत सकते हैं अपनी बॉडी को सेफ रखने के लिए, और फर्स्ट एड की क्या इम्पोर्टेंस है। चिल्ड्रन, as you all know that 21st June is celebrated as United Nations by United Nations. It is declared as Yoga Day, and we do yoga to keep our body fit and healthy. So the main idea is that exercise helps us to keep our body fit and healthy, so we should do regular exercises. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हैं कि आप उठते ही योगा करें, कुछ करें, लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं तो यू कैन डू साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, ऑल दीज आर एक्सरसाइजेज फॉर यू. Now, in the next part, I will teach you how you have to look after your body, the different type of food you should eat, या कैसा हमें खाना खाना चाहिए, रेस्ट कैसे करना चाहिए, एक्सरसाइजेस के बारे में, और अपने आप को अपनी अलग अलग प्लेस पे कैसे सेफ रखना है. We will study in this lesson. Looking after our body. We want to live a happy life. We want to be healthy and fit to do our work and enjoy life. To keep our body and surrounding healthy, proper care is needed. We must learn some good habits and follow them regularly. We can be healthy and enjoy our life by following the simple routine of eating healthy, exercising, maintaining hygiene, and taking enough rest. नाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी बॉडी को, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा और हेल्दी रखना पड़ेगा. और ये हम अपने आप को, बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं? अपनी सराउंडिंग्स, जो हमारी आसपास की सराउंडिंग्स हैं, वातावरण है, उसको हम हेल्दी रखें, अपनी प्रॉपर केयर करें, अपने अंदर गुड हैबिट्स बनाएं, और रेगुलर हम एक्सरसाइजेस करें. हम एक गुड हेल्थ तभी एंजॉय कर सकते हैं अगर हम एक अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, एक सिस्टम से हम वर्क करें, हम हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने आसपास सफाई रखें, अपनी बॉडी की सफाई रखें, और प्रॉपर रेस्ट लें. इफ़ वी डू ऑल दीज थिंग्स, इफ़ वी ईट हेल्दी, ईट प्रॉपर फूड, जैसे बैलेंस फूड या प्रॉपर जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर फूड खाएं, जंक फूड बहुत कम से कम खाएं, एक्सरसाइजेस करें, गेम्स खेलें, और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साफ रखें, कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, एंड देन टेकिंग प्रॉपर रेस्ट. इफ़ वी डू ऑल दीज थिंग्स, वी कैन keep our body fit and healthy, and we can even feel happy. Now, the food, what type of food we eat, या what we should eat. We need healthy food to sustain ourselves. Food that provides us with every nutrients help us to grow and fight disease is termed as healthy or balanced food. Food should be eaten at regular intervals. Special emphasis should be laid on fresh fruits and vegetables. Milk is an important food for children. You should drink it twice a day. Junk food should be avoided as it is not good for health. फूड जो है हमारे को जीने के लिए बहुत ज़रूरत है. वी नीड फूड टू stay fit and healthy, but food helps us to grow and to fight with diseases. And the food which we are eating should have proper nutrients in that.
it is not that we should eat one food only every day. We should eat variety of fruits and food, so that our body gets all the nutrients that are required. And when we are eating a proper food with all the nutrients, it is called a balanced food or healthy food. Now if we eat, suppose we eat egg and bread at breakfast. In lunch, we eat egg and bread. In dinner also again we eat egg and bread. So what are the nutrients that our body is getting? Our body is only getting proteins and some carbohydrates. But if we eat bread and butter, bread or egg in the morning, in the lunch we have chapati, dal, rice, vegetable, and in the dinner again we have something else. बीच में हम लोग मिल्क ले लें, कर्ड खाएं, तो एक केक पूरा बैलेंस्ड हो जाता है कि कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया। और हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी शुड ईट वेराइटी ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड, सब कुछ खाना चाहिए। देर आर सम चिल्ड्रन हु ओनली ईट पोटैटोज, जो सिर्फ आलू आलू खाते हैं, तो उनकी बॉडी में वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। दैट इज़ वाई विच एवर वेजिटेबल योर मॉम इज़ कुकिंग, चाहे वो घिया हो, तोरी हो, लौकी हो, कद्दू हो, आलू हो, गोभी हो, कुछ भी बना रही है, दाल है, साग है, यू शुड ऑलवेज़ ईट ऑल द वेजिटेबल्स। उससे आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रो करेगी और आपको जो डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी। तो द फूड जो सारे एक जो हम डिफरेंट रोज़ हम जो फूड खा रहे हैं अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फूड, जिससे कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकती है। एंड लाइक स्मॉल चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, छोटे बच्चों को मिल्क कम से कम 2 बार पीना चाहिए। जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्सरसाइजेज़ वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। Regular exercise keeps us fit and healthy. Playing outdoor is good exercise and makes our body strong. Dancing, cycling, doing yoga, swimming, all are good for keeping our body fit and active. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि we should keep on doing exercise. It is not that कि आप रोज़ बड़ी एकदम खूब ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका खेलना कूदना, डांसिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये भी एक एक्सरसाइज है। तो लाइक यू आर स्मॉल चिल्ड्रन, आपको ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। इससे आप फिट रहेंगे एंड यू विल फील एक्टिव ऑल्सो। नाउ आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज यू बिकम टायर्ड, तो सो रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। बिना रेस्ट के आपकी बॉडी को हमेशा उसमें एक सुस्ती रहेगी, एक लेज़ीनेस रहेगा। सो व्हेन यू आर डूइंग द वर्क यू नीड रेस्ट। तभी हम लोग जब सोते हैं रात को तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। 6 to 8 आवर्स हम लोग सोते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। जब हम मॉर्निंग में फिर उठते हैं तो बॉडी हमारी फिर दोबारा एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। सो रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द डेज वर्क वी फील टायर्ड, प्रॉपर रेस्ट रिलैक्सेस आवर बॉडी। Sleeping at night for at least 6 to 8 hours gives us enough energy to work again. अभी मैंने आपको बताया rest is very important. Now cleanliness. We must keep our body clean. There are many invisible enemies called germs which can make us sick. They can cause disease if we do not fight them. Healthy food, plenty of exercise, proper rest and clean habits along with clean environment help the body to remain healthy and fit. हम लोगों को अपनी बॉडी हमेशा क्लीन रखनी चाहिए।
हमारे आसपास जो जर्म्स होते हैं इनविजिबल, जो नज़र नहीं आते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। अब जब हम कहीं बाहर से आते हैं, मम्मी आपको बोलती हैं वॉश योर हैंड्स। वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि बाहर के कुछ भी जर्म्स आपके हाथों पर लग जाते हैं तो आप उससे कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपके मुंह में जाएगा एंड यू विल फॉल सिक। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू वॉश योर हैंड। सो यू हैव टू ब्रश योर टीथ। आपके दांत अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, दांतों में जर्म्स लग जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, दांत खराब हो जाते हैं। यू शुड टेक बाथ डेली। हमें हर रोज़ बाथ नहाना चाहिए, उससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है। जो जर्म्स बाहर के ऑब्स्टिकल्स लग या जर्म्स लग जाते हैं वो नहाने से, साबुन और पानी से क्लीन हो जाते हैं। वी शुड कट आर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नेल्स को भी काटते रहना चाहिए। नेल्स जहाँ बड़े होते हैं उसके अंदर गंदगी भर जाती है तो उससे भी आप बीमार हो जाते हैं। So children, these are the things that you have to do to keep your body clean and stay fit and healthy. Now next we will study the safety rules, how the rules you have to follow at होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, स्ट्रीट, हर जगह पे आपको कैसे रूल्स फॉलो करने हैं कि एक डेंजर से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए आप अपने कैसे रूल्स फॉलो करेंगे।